Hello students, today we will revise chapter 1 A Letter to God. स्टूडेंट ये फर्स्ट जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है ये आपको करना है, फिर से रिवाइज करना है, रिमाइंड रखना है अच्छे से। और ये सेकंड ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, उसके बाद ये थर्ड, तीनों को आपको रिवाइज कर लेना है। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर अगेन। हु डज लैंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस। स्टूडेंट्स हमने इसको इंग्लिश टू हिंदी पहले जो वीडियोस थे उसमें हमने इसको डिस्कस कर लिया है, अब हम इसको ओनली इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। हु डज लैंचो हैव फेथ कंप्लीट फेथ इन, which sentences in the story tell you this? Answer is Lancho has complete faith in God as he is instructed that God knows everything and help us in our problem. There are few sentences which show this. Sentences are, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. इसकी लैंग्वेज एकदम ईजी है। All through the night, Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. Okay, students. Question 2. Why does the postmaster send money to Lancho? Why does he sign the letter God? Answer है, the postmaster sends money to Lancho in order to keep Lancho's faith in God alive and firm, as he was completely moved by it. When postmaster reads the letter of Lancho to God, he becomes serious and does not want to shake his faith and decide to answer the letter. He gathers money with the help of the post office employees, and friends on behalf of God, and sign the letter God so that Lancho's faith does not get shaken. Question 3. Did Lancho try to find out who had sent the money to him? Why not? Lancho did not try to find out who had sent the money to him because he never suspected the presentation of God and had complete faith in God. He could not believe that it could be anybody else other than him who would send him the money. His faith in God was so strong that he believed that he had sent money to him for his help in his problem. Question 4. Who does Lancho thinks has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? Remember that irony in the situation is an unaccepted accept of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. Lancho thinks that the post office employees have taken the rest of the money, as he had demanded 100 pesos from God, and in the envelope there was only 70 pesos, and God cannot make such a mistake, so he assumed that they have stolen the money. The irony in this situation is the Lancho suspected those people who helped him in his problem and tried to keep his faith alive in God. क्वेश्चन 5 ये हम टेक्स्ट बुक में लास्ट टाइम किया था। क्वेश्चन 6. देर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ. हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलुस्ट्रेटेड? अब टू कॉन्फ्लिक्ट हैं, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर.
The conflict between human and nature is illustrated by the destruction of Lancho's crop by the hailstorm, as Lancho was accepting a good rain to have good harvest, as that was the only hope he had for his yearning. He worked so hard to feed him his family, but nature turns violent and destroyed everything. Conflict between humans and humans. The story also illustrated themselves as the postmaster, along with his friends and staff, sent Lancho money that Lancho demanded from God, although they didn't know Lancho. Lancho blamed them for talking away from amount of money. He called them a bunch of crooks. This shows that man does not have faith in other man, thereby giving rise to his conflict. स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन आंसर फिर से नोटबुक में लिखने हैं, क्योंकि ये हमारा रिवीजन है और अच्छे से लर्न करने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में इसमें से सीन कॉम्प्रिहेंशन आ सकती है, मतलब आएगी ही 100%। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ से एक स्टैंजा ले लिया है जो यहाँ तक है, ठीक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और आपको उनको आंसर देना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे, आफ्टर हिज क्रॉप्स हैविंग बीन कम्प्लीटली रेंड लेंचो हॉप्ड दैट। तो लेंचो की क्या हॉप थी? इस स्टेंजा में हम देखेंगे कि लेंचो एक हॉप करते हैं कि उसको गॉड से कुछ चाहिए, तो क्या ही वुड गेट हेल्प फ्रॉम गॉड। तो आंसर ये होगा, देखो क्वेश्चन बन रहा है, आफ्टर हिज क्रॉप्स हैविंग बीन कम्प्लीटली ruined Lancho hoped that। तो what is hope? तो आंसर हो रहा है he would get help from God। तो उसको गॉड से हेल्प चाहिए थी। तो आपको इस तरह से एक स्टेंजा, कोई भी एक स्टेंजा ले लेना है और उसमें से क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है। और सबसे पहले इसके लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ कि आप जब भी सीन या अनसीन कॉम्प्रिहेंशन अटैम्प्ट करें तो सबसे पहले पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ ले और उसमें से क्वेश्चन आंसर जो भी आपको निकालने हैं वो पूरे उनको अच्छी तरह रीड कर ले और उनको सेंटेंस हर एक मीनिंग का, आपको हर एक वर्ड का मीनिंग भी पता होना चाहिए, इससे आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। और काफ़ी बार ये होता है कि हम सेंटेंस को कम्प्लीटली नहीं पढ़ते, जिस वजह से हमारे मार्क्स हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको ये कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट करनी है, ठीक है। फिर इसमें से और भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि दूसरा एक क्वेश्चन ये बन रहा है, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन मीन्स। अब लेंचो को देखो, लेंचो वॉज एन ऑक्स ये बोला गया है, तो इसका मीन क्या है? तो आप आंसर दे सकते हो कि क्वेश्चन फिर से सुनो स्टूडेंट्स, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, इसका मतलब क्या है, मीन्स। तो इस तरह से आपको हर एक स्टेंजा में से 4 या 5 क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है। तो लेंचो वॉज ए वेरी हार्ड वर्किंग मैन, इसलिए उसको क्या ऑक्स कहा गया, ठीक है। फिर काफ़ी बार ये भी पूछा जा सकता है कि किसी भी वर्ड का सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट जो पैराग्राफ है उसके सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और वर्ड मीनिंग, खासतौर से वर्ड मीनिंग याद रखने हैं आपको। जैसे काफ़ी बार ये पूछा जाए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्साइंस, ठीक है। तो इसका मीनिंग हमें लिखना है, एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। और अभी इसमें और भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे लेंचो नीडिड मनी फ्रॉम गॉड टू। तो आंसर है, इसका आंसर होगा, सो ही इज फील्ड अगेन एंड टू लाइव अंटिल ही हैड न्यू क्रॉप्स। वो गॉड को कहता है कि जब तक मुझे न्यू क्रॉप्स नहीं आ जाती एटलीस्ट तब तक तो मेरी हेल्प कीजिए, ठीक है। फिर इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं, लेंचोज क्रॉप्स वाज रूइंड बिकॉज ऑफ, उस लेंचो की क्रॉप खराब हो गई थी, रीज़न क्या था, हैवी रेन, हेलस्टॉर्म, ठीक है। और हेलस्टॉर्म्स गिर गए थे, हैवी रेन, ये उसके रीज़न थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको मुझे ये पूरा कंप्लीट करके इसमें से ये पैसेज नहीं, कोई भी और पैसेज की, मतलब एवरी लेसन में से हमें 3 तो पैसेज ऐसे सेलेक्ट करने ही हैं जिसमें हम ये सीन कॉम्प्रिहेंशन कर सकें, ठीक है। तो इसी तरह से पैसेज को लिखकर उसके क्वेश्चन बनाकर और उसके आंसर लिखने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। राइट इन योर नोटबुक। थैंक यू।